Good morning. Fundamental of nursing. Today's chapter is about a subcutaneous injection. The same chapter, the next type of parenteral route of drug administration is subcutaneous injection. The drug injected into the subcutaneous layer of the skin is known as the subcutaneous injection. Here the diagram is shown. The upper layer is epidermis and this layer is known as subcutaneous, and below the subcutaneous there is a muscular layer. Okay, the drug is injected in this layer, subcutaneous layer is known as the subcutaneous injections. These injections are administered slowly and insert the needle at the angle of 45 degree and withdraw the needle gently. The drug become effective within the 20 minutes. Okay, the articles used for these subcutaneous injections are subcutaneous injection syringe, which are available in the medical with the needle. Okay, the needle is attached to the syringe and the length of the needle as per the layer. Okay, then the spirit swab, kidney tray or paper bag, then drug of administered drug or medicine vial and the patient's order sheet. The purposes of these subcutaneous injections are: this method is used to administer small quantity of drug. Small quantity of injections are administered through this method. Then the patient is unable to take orally drug. The drug is destroyed by intestinal secretions. The purposes of injections are: understand these purposes. This method is used to administer small quantity of drug. The patient is unable to take oral drug and the drug is destroyed by intestinal secretions. In this method, the various routes are various areas which are preferred by the nurse or the doctors: the anterior and posterior sides of human body, where the most commonly area used for the subcutaneous injection is abdominal area and the deltoid area and the thigh. Okay, these areas are most probably used in the hospitals because in this area the muscles are more effective and the subcutaneous tissues are most effective to take the effect of the drugs. So understand about the subcutaneous injection. The subcutaneous injection means what? The injections injected into the subcutaneous layer of the skin. And in this method, the injections are inserted in 45 degree angle. The injections inject medicine slowly. Withdraw the needle gently when you are giving the medicines. The drug become effective within 20 minutes. Most commonly drugs which are given through this route is insulin. Okay, insulin is given by this method, subcutaneous method. The articles used for this subcutaneous injection syringe: spirit swab, kidney tray, paper bag, drug or the medicine vial, patient's order sheet. This is all about the subcutaneous injection. Next route is intravenous injections. Next route is intravenous injections. The intravenous injections means what? The introduction of drug directly into the bloodstream. Common sites is in front of elbow and outer aspects of the palm. The purposes of these injections are: to administer intravenous injections, to administer intravenous fluids in large amount. Look into this diagram. This is the vein and the cannula is inserted into the vein. Okay, the blood vein and the cannula which are inserted in
to the vein. Okay, the articles used for these intravenous injections are the tray containing sterile gloves, IV cannula, 3-way, cotton swab, spirit, tourniquet, adhesive tape, then kidney tray and IV set, IV fluid or injections and patient's order sheet. The intravenous injections are given, but some points to be remembered for these injections. The points to remember while selecting the vein: make the use of most distal part of the vein. Most distal part means the vein look एकदम स्ट्रेट दिसायला पाहिजे वेन. ओके, त्यानंतरच तुम्ही IV कॅन्युला इन्सर्ट करू शकता. देन अवॉइड द पंक्चरिंग ऑफ द वेन ऑन द जॉइंट्स. It will be a normal movement of the joint. Avoid the puncturing the vein in close proximal to the infected wound. Avoid puncturing the vein on extremely having a shunt. To avoid the puncturing vein to lower extremities in adult. The intravenous injections means what? The introduction of मेडिसिन और ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम. डायरेक्ट ब्लड में हम लोग इंसर्ट करते हैं कौन सा भी मेडिसिन जो एडवाइस किया डॉक्टर ने. तो इस तरह इंसर्ट करते हैं. फर्स्ट लेयर रहता है वो एपिडर्मिस लेयर रहता है, देन सबक्यूटेनियस लेयर, देन दिस इज द मस्कुलर लेयर. इन मस्कुलर लेयर द वेन्स आर प्रेजेंट. ओके, वेन्स एंड आर्टरीज आर प्रेजेंट. सो हम लोग जो वेन फ्लो इंसर्ट करते हैं वो किस में करते हैं? वेन में करते हैं. The purposes of these intravenous injections: to administer the intravenous injections, various types of injections, antibiotics are there. To administer intravenous fluid, जो लार्ज अमाउंट में फ्लूइड हम लोग देते हैं तो किधर से देते हैं? इंट्रावेनस इंजेक्शन से. आर्टिकल्स यूज फॉर दिस प्रोसीजर: ट्रे कंटेनिंग स्टेराइल ग्लव्स, IV cannula, 3-way, cotton swab, spirit, tourniquet, adhesive tape. Okay, then kidney tray for soil waste, IV set, IV fluid or injections and patient order sheet. पेशेंट ऑर्डर शीट आपको समझ में आती है? पेशेंट ऑर्डर शीट में क्या क्या लिखा है, कैसे इंजेक्शंस लिखा है, उसका डोज कैसे लिखा है, उसका सबका फुल फॉर्म मालूम है? कैसे लिखते हैं डॉक्टर? जब भी आज का ऑर्डर शीट है ऊपर लिखते हैं TPR, ओरल फ्लूइड. जब भी ओरल फ्लूइड चालू रहेगा तो ओरल फ्लूइड लिखते हैं. ओरल फ्लूइड नहीं रहेगा पेशेंट को तो पेशेंट इज NBM. NBM मतलब नील बाय माउथ. ओके, देन O2 पे रहेगा, ऑक्सीजन पे रहेगा तो O2 ऐसे लिखते हैं. उसके बाद में इंजेक्शंस जो भी रहेंगे, इंजेक्शन अमीकासिन है उसका स्ट्रेंथ लिखते हैं, कितना देना है पेशेंट को, 500 mg, कैसे देना है, रूट, IV एंड कितने टाइम देना है. BD मतलब ट्वाइस अ डे. ओके, सो इंजेक्शंस लिखने के टाइम डॉक्टर क्या लिखते हैं? मेडिसिन लिखने के टाइम टाइप क्या है मेडिसिन का? इंजेक्शंस है, ओरल है. ओरल से रहेंगे तो क्या लिखते हैं? सिरप, जेलुसिन, ओरल 2 TSF, कितना? TDS. ओके, ऐसे लिखते हैं. क्या है मेडिसिन? क्या है मेडिसिन का नाम? क्या है? ओके, एक्चुअल मेडिसिन क्या है? इंजेक्शन है, सिरप है, टैबलेट है, वो पहले लिखते हैं. ठीक है, ये पहला आता है. उसके बाद में इंजेक्शंस का और मेडिसिन का नाम, उसके बाद में स्ट्रेंथ कितना देना है. ओके, और देन रूट ऑफ एडमिनिस्टर, इसको क्या बोलते हैं? रूट्स. अलग अलग रूट है. आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया है, मैंने यूट्यूब पे डाला है. पिछला लेक्चर देखो आप. ओरल्स का लेक्चर हुआ है और सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर का हुआ है. कितना रूट लिखते हैं? ओरल और IV और IM और
कितने बार देना है पेशेंट को, डोज कितने टाइम देना है दिन में। ओके, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर्स। सो ये ऑर्डर शीट रहती है पेशेंट की। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जब आप लोग कौन सा भी वेन सिलेक्ट करते हो आईवी कैनुला डालने के लिए, तो क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखना है आपको। मेक द यूज ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द वेन, जहाँ पे पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा न हो ऐसे पार्ट पे आपको कैनुला डालना है, मतलब जॉइंट पे नहीं लगाना है। ओके, जॉइंट पे लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेशेंट कंटिन्यू हाथ ऐसा ही रखने वाला है जब भी आप जॉइंट पे लगाएंगे तभी। जब भी आप पार्ट कौन सा भी सिलेक्ट करते हो वेन के लिए, तो अच्छा डिस्टल पार्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये अपर पाम, इधर का पाम, फोर आर्म का पार्ट। ओके, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो पेशेंट की। मेक द यूज ऑफ मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द वेन, अवॉइड पंक्चरिंग द वेन ऑन जॉइंट, क्या अवॉइड करना है, जॉइंट पे पंक्चर करना अवॉइड करना है। देन अवॉइड द पंक्चरिंग द वेन इन क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी टू द इन्फेक्टेड वुंड, जब भी पेशेंट को बर्न रहेगा, कुछ भी जख्म रहेगी, तो वहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है आईवी कैनुला। ये हाथ पे बर्न हुआ है तो इधर किधर भी वेन फ्लो नहीं डालना है पेशेंट को, दूसरा हाथ सेलेक्ट करना है। देन अवॉइड द पंक्चरिंग द वेन इन एक्सट्रीमिटी हैविंग शंट, किसी किसी पेशेंट को डायलिसिस का शंट रहता है, डायलिसिस के शंट रहते हैं हाथ में, हेवी शंट वगैरह डाला रहता है, तो वो हाथ यूज़ नहीं करना है वेन पंक्चर के लिए। ठीक है, जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है वो हाथ भी यूज़ नहीं करना है। मोस्टली डॉक्टर बताते ही है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड का ऑपरेट हुआ है ब्रेस्ट का, तो आप वो हाथ यूज़ मत करो। देन ट्राई टू अवॉइड पंक्चरिंग द वेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इन द अडल्ट, ज़्यादातर पाँव पे कौन से भी वेन में लगाना नहीं है, वेन फ्लो पाँव में लगाना ही नहीं है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा लगाना ही नहीं है, पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट्स रिमेंबर रखना है। देन जब भी हम लोग वेन फ्लो यूज़ करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, तो पेशेंट की क्या क्या केयर लेनी चाहिए, कौन सी केयर लेनी चाहिए। पेशेंट के हाथ में कुछ स्वेलिंग है या डेली ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, मोस्टली इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, फ्लेबाइटिस का कॉम्प्लिकेशन रहता है। फ्लेबाइटिस मतलब स्वेलिंग आना, आउट जाना वेन फ्लो। ओके, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, फ्लेबाइटिस। ओके, फ्लेबाइटिस ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वेन इंट्रावेनस फ्लूइड का। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, जब भी हम लोग बड़े अलग अलग एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, तो क्या होता है, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, देन पेन हो सकता है और फ्लेबाइटिस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, फ्लेबाइटिस, पेन, allergic reactions. Okay, these are the complications of injury to the nerve, air embolism, okay, these are the complications of intravenous injections. फ्लेबाइटिस हो सकता है, फ्लेबाइटिस मतलब आईवी फ्लूइड आउट जाना और स्वेलिंग हो जाना, पेन एट दैट साइड व्हेन कैनुला साइड, एलर्जिक रिएक्शन, कभी कभी हम लोग टेस्ट डोज देते नहीं है, डायरेक्ट इंजेक्शंस देते हैं, तो पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इंजरी टू द नर्व्स, और स्किन में अलग अलग नर्व्स रहते हैं प्रेजेंट, तो वो नर्व्स को इंजरी हो सकती है। एयर एम्बोलिज्म, जब हम लोग आईवी कैनुला लगाते हैं और आईवी फ्लूइड देते हैं, जैसे कि ये बॉटल है आईवी का, और ये बॉटल से हम लोग
आईवी फ्लूइड इंसर्ट करते हैं वेन फ्लो में। ओके, ये है अपना आईवी सेट। तो इसमें का एयर नहीं निकाला हम लोगों ने, अच्छे से केयर नहीं लिया। और ये जो चेम्बर है, चेम्बर 3/4 तो एटलीस्ट फुल होना चाहिए। ओके, जो आईवी सेट का जो चेम्बर रहता है पहला, तो वो चेम्बर 3/4 फुल होना चाहिए, पूरा एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। एम्प्टी रहेगा तो क्या होगा, जो ये ड्रॉप गिरेंगे तो उसके साथ एयर भी अंदर जाएगी। ओके, सो पूरा आईवी सेट का एयर हम लोग निकाल के बाद में ही आईवी सेट डालना है, लगाना है पेशेंट को। सो ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए पेशेंट के वेन में एयर नहीं जाना चाहिए, ये नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, उससे एयर एम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। उसके बाद में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। जब भी हम आईवी फ्लूइड देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने नर्सेस इन्वेस्टिगेशन, नर्सेस नोट्स में क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। आपने कौन सा इंजेक्शन दिया, जैसे कि डॉक्टर ऑर्डर लिखते हैं वैसे ही आप भी लिखना है। मैंने जब भी आप इवनिंग ड्यूटी के स्टाफ हो, इवनिंग ड्यूटी में मेडिसिन दिया है, कौन सा मेडिसिन आपने दिया है, इंजेक्शन लैसिक्स दिया है, रूट क्या यूज़ किया आपने लैसिक्स देने के लिए, आईवी रूट यूज़ किया है, आईवी मतलब इंट्रावेनस। ओके, आईवी रूट यूज़ किया है, और कितना इंजेक्शंस दिया है, स्ट्रेंथ कितना इंजेक्शंस का, 2 ml। ओके, 2 ml इंजेक्शंस आपने इंसर्ट किया, या तो आप कितना ml दिया है ये लिखना है, या तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, 20 mg है 2 ml में, तो ये दोनों भी लिखना ज़रूरी है। ओके, आपने कितना दिया है। ओके, और कौन से टाइम में दिया है, 6 PM। ओके, और आपका इनिशियल जिसका नाम है वो सिस्टर का नाम इधर आएगा। ओके, इनिशियल आपका। सो आपको ऐसे रिकॉर्डिंग रखना है आपके नर्सेस नोट्स में, ठीक है, आफ्टर गिविंग द मेडिसिन्स। और आईवी फ्लूइड जब भी देते हो, जैसे कि नॉर्मल सलाइन लगाया, आपने कितना लगाया, 500 ml। ओके, और कौन से टाइम पे लगाया है, इवनिंग में 6 PM में लगाया है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको करना है। ये प्रोसीजर करने के बाद आफ्टर केयर, रिप्लेस ऑल द आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स आपने यूज़ किया है वो अच्छे से रिप्लेस करना है। डिस्पोज ऑफ द डिस्पोजेबल आर्टिकल्स, मतलब जो वेंफ्लो का नीडल है वो किस में डिस्पोज करेंगे आप, शार्प कंटेनर में। जो वेंफ्लो का नीडल है वो कहाँ पे डिस्पोज करेंगे, शार्प कंटेनर में। देन वॉश द हैंड्स एंड रिकॉर्ड इन नर्सेस नोट्स। These all are the procedure of intravenous insertion, administration of medicines. So वेनफ्लो अलग अलग नंबर के रहते हैं, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग नंबर के वेनफ्लो यूज़ करते हैं। पीडियाट्रिक के लिए अलग, इन्फेंट के लिए अलग, अडल्ट लोगों के लिए अलग तरह के वेनफ्लो यूज़ करते हैं। उसमें कलर कोडिंग रहते हैं। ओके, जैसे कि 18 नंबर का वेनफ्लो है जो ग्रीन कलर का रहता है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं। कलर कोड्स ऑफ इंट्रावेनस कैन्युला। कलर कोड ऑफ इंट्रावेनस कैन्युला, 18 नंबर, ग्रीन कलर। ये किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन 20 नंबर, पिंक, जो नॉर्मली यूज करते हैं अडल्ट के लिए। आईवी फ्लूइड देने के लिए, आईवी फ्लूइड और इंजेक्शंस। देन 22 नंबर, ब्लू कलर, ये भी आईवी फ्लूइड और इंजेक्शंस देने के लिए यूज करते हैं।
देन 24 नंबर येलो कलर, मोस्ट प्रोबेबली चाइल्ड में यूज करते हैं 24 नंबर। 26 नंबर ब्राउन कलर, इन्फेंट में यूज करते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज। ओके, these are the color code of IV cannulas. 18 number green color used for blood transfusion. 20 number pink color used in adult patients. These two most probably used in the hospitals for the adult patients. Pink color used for IV fluids and injections. 22 number ब्लू कलर का जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, नीडल ज़्यादा जाड़ी भी नहीं होती है। सो ये भी यूज़ करते हैं IV फ्लूइड और इंजेक्शंस के लिए। 24 नंबर यूज इन पीडियाट्रिक, ओके, चाइल्ड में यूज़ करते हैं, येलो कलर का रहता है। 26 नंबर न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ करते हैं, ओके, ब्राउन कलर का रहता है। ये है कलर कोडिंग ऑफ द वेन फ्लोज। देन प्रिपेयरिंग द मेडिकेशंस फ्रॉम द एम्पूल। जब आप लोग ये मेडिसिन कौन सा भी प्रिपेयर करते हो, पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है, एंटीबायोटिक का वायल रहता है, उसमें पाउडर फॉर्म में इंजेक्शंस रहता है जो आप प्रिपेयर करते हो। ओके, मोस्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द पेशेंट। पहला क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द पेशेंट, पेशेंट का नेम, उसका ऑर्डर शीट क्या है, डॉक्टर्स का ऑर्डर्स क्या लिखा है। ओके, पेशेंट के ऑर्डर में सब पेशेंट को अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। कौन से एंटीबायोटिक आपने अभी तक देखे, सर्वजण वर्क करतायत हॉस्पिटलमध्ये, तर कोणते एंटीबायोटिक्स तुम्हाला माहिती आहेत, कोणते एंटीबायोटिक यूज करतात डॉक्टर्स जास्त, मोनोसेफ, ओके, सेफेक्झोन, सेफ्ट्रेक्झोन, टैजोफास्ट, ठीक है, ये हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, मोनोसेफ यूज़ करते हैं, मोनोसेफ ज़्यादातर यूज़ करते हैं सर्जिकल में। सो ये सब किस में रहते हैं, पाउडर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में रहते हैं। तो उनको डाइल्यूट करने के लिए या तो उसमें वो सेम बॉक्स में डिस्टिल वाटर रहता है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। सो ये यूज़ करने के लिए भी अच्छे से असेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। ओके, जो नीडल आप ये लोग यूज़ करते हैं, नीडल के टिप में कहाँ पे भी हाथ नहीं लगाना है, ग्लव्स डाल के आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, जब भी आप लोग प्रिपेयर करते हो मेडिसिन, अच्छे से सिरिंज नीडल इंसर्ट करना है डिस्टिल वाटर में और नॉर्मल सलाइन में, एस्पिरेट करना है और उसके बाद किसको पंक्चर करना है। जब भी आप वो कैप निकालते हो तो कैप निकालने के बाद वो जो टैप रहता है उस पर किधर भी आपको टच नहीं करना है, खाली नीडल इंसर्ट करना है उसमें। इसको बोलते हैं असेप्टिक टेक्निक, जिससे पेशेंट को कुछ भी तकलीफ ना हो। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नेम, बेड नंबर, एज, सेक्स, registration number and diagnosis of the patient. Check the physician prescription for the type of drug, dosage, time of administration. ये सब चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, 5 राइट्स है, 6 राइट्स है। कौन से राइट्स हैं मेडिकेशंस के लिए, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड कौन सा राइट है, मेडिसिन्स जेव्हा आपण कुठलेही ओरली असू दे किंवा कुठलेही मेडिसिन्स असू दे जे आपण ॲडमिनिस्टर करतोय, तेव्हा आपण ॲटलिस्ट 5 राइट्स तरी यूज करतो पेशंटसाठी। राइट पेशंट, फाइव राइट्स ऑफ मेडिकेशन। right patient, right dose, right route,
राइट टाइम, राइट टाइम, and right drug. Okay, these are the rights of medications. And one more right is there, sixth right, right to information to the patient. ये मोस्ट कॉमनली आपको याद रखने हैं जब भी आप लोग कौन से भी ओरल या तो आईवी आईएम कौन से भी रूट से आप मेडिसिकेशन दे रहे हो, ये 5 राइट्स तो याद ही रखने हैं. ओके, कौन सा है? राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, कौन सा रूट आप यूज़ कर रहे हो. पेशेंट को डॉक्टर ने बोला है कि इंजेक्शंस इंसुलिन दे दो सबक्यूटेनियसली, आपने दिया आईएम, तो ये करेक्ट है? नहीं. ओके, सो राइट रूट है, राइट टाइम है. राइट टाइम में मतलब जब भी आप इंसुलिन देते हो बिफोर मील देते हो. ओके, बिफोर मील मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट रहेगा, बिफोर लंच, बिफोर डिनर. ये आप खाने के बाद देंगे तो बराबर है आपका मेडिकेशन? नहीं. सो राइट टाइम, राइट ड्रग. ओके, कौन सा ड्रग दिया है वो ही ड्रग देना है पेशेंट को, लिखा है ऑर्डर में वही. और राइट टू इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को इन्फॉर्म करना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं पेशेंट के साथ. ओके, सो राइट टू इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट अबाउट गिविंग द मेडिसिन्स. So check the treatment chart of the patient to find the time at which the last dose of drug was given. पहले स्टाफ ने कभी दिया है मेडिसिन वो भी देखना आपको ज़रूरी है. Explain the procedure to the patient while preparing the medicine from the ampoule. जब भी हम लोग कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, ज़्यादा पेनफुल भी रहता है कौन से एंटीबायोटिक्स, तो पेशेंट को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है. वॉश द हैंड्स बिफोर द प्रोसीजर. Then lightly tap the top of the ampoule with the finger and until the fluid is moves down from neck to the ampoule. अच्छे से फ्लूइड डिजॉल्व होने के बाद, इंजेक्शन डिजॉल्व होने के बाद ही आपको पेशेंट को वो इंजेक्शंस देना है. Rub the ampoule and filter with the neck. Then place the swab around the neck जो पहले पंक्चर किया है आपने. जब भी आप लोग डिस्टिल वाटर अंदर डालते हो तभी पंक्चर करते हो, बाद में फिर से वो एस्पिरेट करने के लिए पंक्चर करते हो, तो वो पंक्चर करने से पहले भी आपको अल्कोहल स्वैब से वो टैप क्लीन करके लेना है. देन इंसर्ट द नीडल अटैच टू द सिरिंज into the center of the ampoule opening. Do not allow needle tip or shaft to touch the rim of the ampoule. जो निडल का जो शाफ्ट है उस पर कहाँ पे भी आपको टच नहीं करना है. Then fill the normal saline into the syringe by gently pulling back and tilting the ampoules, but empty the ampoule into the kidney tray. Expel the excess of bubbles. जो एक्सेस बबल्स एंट्री करते हैं सिरिंज में जब भी आप एस्पिरेट करते हो कोई सा भी मेडिसिन, जब भी बबल्स एयर बबल्स रहते हैं वो आपको रिमूव करने हैं और उसके बाद ही वो आईवी से इंसर्ट करना है. ओके, जब भी आप लोग इंजेक्शंस देते हो सिरिंज से, हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे, इंजेक्शन से देते हो तो जो एयर बबल्स रहते हैं वो पूरा निकल के बाद में ही आपको आईवी देना है मेडिसिन. अटैच द कवर ऑफ द नीडल to the syringe and put into the tray. जो शार्प कंटेनर का कंटेनर है उसमें वो नीडल डालना है और पेशेंट को जो थ्रीवे रहता है वहाँ पे वो कैप लगाना है, वो ओपन रखना नहीं है. ठीक है,
ये सब प्रोसीजर है आईवी मेडिसिन की। आईवी मेडिसिन में अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। आपको बोला गया है 500 NS आप इतने टाइम में 2 आवर्स में ख़त्म करो, तो आपको ड्रॉप एडजस्ट करना पड़ेगा। सो वो ड्रॉप एडजस्ट करने के लिए भी फॉर्मूलेज है अलग अलग। समझ में आया इतना प्रोसीजर? मैंने शायद पहले दिया है, फॉर्मूले दिले इतना मी आधी। ड्रॉप रेट दो अलग अलग तरह के आईवी सेट रहते हैं। एक तो माइक्रो सेट रहता है और एक मैक्रो, जो नॉर्मल सादा आईवी सेट रहता है उसको बोलते हैं मैक्रो सेट। जो सादा आईवी सेट है उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो सेट। मैक्रो सेट में 1 ml इज इक्वल टू 15 ड्रॉप्स। 1 ml फ्लूइड मीन्स 15 ड्रॉप्स, ओके, फॉर माइक्रो सेट, सादा आईवी सेट के लिए। सो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? ड्रॉप रेट इज इक्वल टू ड्रॉप पैटर्न into volume of fluid divided by time in seconds. Time in minutes. ओके, टाइम इन मिनट्स। जब भी आपको डॉक्टर ने बोला है 500 ml नॉर्मल सलाइन ऑर्डर में लिखा है फॉर 5 आवर्स, तो आपको ड्रॉप रेट कितना रखना पड़ेगा? कैसे करना है आपको ये सम? ड्रॉप रेट इज इक्वल टू आपका जो सादा आईवी सेट है, ओके। सादा आईवी सेट में कितना है? 15 ड्रॉप्स है, ओके। ड्रॉप पैटर्न 15 इंटू वॉल्यूम कितना है फ्लूइड का? 500 ml, ओके। और आपको कितने आवर्स में डालने के लिए बोला है? 5 आवर्स में। 5 आवर्स मीन्स कितना मिनट्स होगा? 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, तो 5 आवर्स मीन्स 300 मिनट्स। ये सम आना चाहिए आपको। 5 आवर्स मीन्स कितना? 60 इंटू 5, 300 मिनट्स। कितने मिनट्स होते हैं? 300। आपको कितना ड्रॉप रखने पड़ेंगे? 25 ड्रॉप्स, ओके। आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे 25 ड्रॉप इन 1 मिनट, ओके। 1 मिनट में 25 ड्रॉप्स रखेंगे तो ये फ्लूइड टोटल 5 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया ये सम? नेक्स्ट माइक्रो सेट, जो एकदम छोटा ड्रॉप गिरता है, ये आपका आईवी सेट है। यहाँ पे ड्रॉप पैटर्न रहता है, कभी कभी ये छोटा रहता है, उसमें छोटे छोटे ड्रॉप गिरते हैं, मालूम है? इसको बोलते हैं माइक्रो सेट। ये माइक्रो सेट इंसुलिन ड्रिप के लिए यूज़ करते हैं, डोपामिन ड्रिप के लिए यूज़ करते हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन, अलग अलग जो कार्डियक ड्रग्स है उसके लिए ये माइक्रो सेट यूज़ करते हैं। आज जाके देखो माइक्रो सेट हॉस्पिटल में। माइक्रो सेट में 1 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स।
सो इंसुलिन ड्रिप आपने लगाया है, पेशेंट को ये इंसुलिन ड्रिप 8 आवर्स में ख़त्म करना है, ऐसे डॉक्टर ने लिखा है। 500 ml NS में इंसुलिन डाला है और ये इंसुलिन ड्रिप डॉक्टर ने बोला है 8 आवर्स में ख़त्म कर दो। तो ये कैसे करेंगे? ड्रॉप रेट इज इक्वल टू कितना है, ड्रॉप पैटर्न क्या है, 60 इंटू 500 ml डिवाइडेड बाय 8 आवर्स। 8 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है आपको। 8 इंटू 60 कितना हो गया, कितना मिनट्स? टेबल्स बाहर नहीं है, कितना 8 आवर्स का 60 मिनट्स में कन्वर्ट करो। 60 इंटू 8, 6 का टेबल नहीं आता है, 480 मिनट्स। सो ये सम सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। बोलो आंसर फास्ट। कितना हो गया? अबाउट 60 या 62 ड्रॉप्स आपको रखने पड़ेंगे, तभी ये फ्लूइड 8 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कर ले कि नहीं? समझ ले दोगी ना? समज ले का? हे नॉर्मल गणित आहे। हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तुम्हाला ड्रॉप ॲडजस्ट करताना। ठीक आहे, अर्धा चॅप्टर आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया। आपल्याला प्रॅक्टिकल घ्यावं लागेल, त्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही।